So before beginning up with differentiation, we need to learn the formulae associated with this, as we need to learn tables before doing multiplication. So differentiation of sin x is cos x. Differentiation of cos x is minus sin x. Differentiation of tan x is sec square x. Differentiation of sec x is sec x tan x. Differentiation of cosec x is minus cosec x cot x. Differentiation of cot x is minus cosec square x. And what else is left? I think all are done. Trigonometry में तो सारे ratios हो चुके हैं. Differentiation of log x is 1 by x. Differentiation of x raised to the power n is nx raised to the power n minus 1. Differentiation of a raised to the power x is a raised to the power x. And differentiation of e raised to the power x is e raised to the power x. Okay. So let's brush up with some of the basics that we have done in class 11th. If you have addition of two functions, f of x and g of x, or subtraction of them, right? Then differentiation can be done as d by dx of f of x plus minus d by dx of g of x. You can just distribute this differentiation separately on both the functions with the positive or negative sign in between them written as it is. But then it doesn't go this way when there is multiplication. For multiplication, we have product rule. Now, what does product rule say? It says if you have differentiation of two functions, u and v, right? Then write down first function as it is and multiply it with the differentiation of second function, then plus sign. Then write second function as it is and multiply it by the differentiation of first function, right? So d by dx of two functions u and v, the product of two functions u and v is first function as it is, multiply it by differentiation of second function, then second function as it is, multiply it by the differentiation of first function. So basically what we are doing here is एक फंक्शन एज इट इज रखते हैं, दूसरे के डिफरेंशिएशन से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं. जिसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई किया अगली बार उस फंक्शन को एज इट इज रख दीजिए, और जो फंक्शन पहले अनटच था अब उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सिंपल. कॉपी दिस. दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल. Now, if you have got division of two functions, you have got numerator, you have got denominator, and you have to find out the differentiation. Then it is written as denominator as it is लिखिए into differentiation of numerator minus numerator as it is लिखिए into differentiation of denominator divided by denominator square. क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन रूल. Now let us move on to the chain rule. चेन रूल एप्लीकेबल कहाँ होता है? जहां कहीं पर भी कॉम्पोजिट फंक्शन होगा वहां चेन रूल एप्लीकेबल होगा. सिंपल सी चीज है. जहां कहीं पर भी कॉम्पोजिट फंक्शन होगा वहां चेन रूल होगा. ओके. अब कैसे करेंगे इसको? ध्यान से देखिए. एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम करते हैं.
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस 5। इसे कॉम्पोजिट फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अलजेब्रिक फंक्शन प्रेजेंट है। तो जब एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन प्रेजेंट होता है तो उसे हम कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं। यहां लगता है चेन रूल। मैंने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बताया विच इज कॉस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स की जगह अब एक अलग टर्म आ गया। अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमें लगाना पड़ता है चेन रूल, एंड चेन रूल इज वेरी सिंपल। साइन का मतलब कि जो आउटर फंक्शन है उसका जो डिफरेंशिएशन नॉर्मली होता है आप वैसे ही लिख दीजिए। तो जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, वैसे ही साइन ऑफ 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ 3x प्लस 5 होगा। एक्स को किसने रिप्लेस किया है या इनर फंक्शन कौन सा है? ठीक है, एक्स को रिप्लेस किया है 3x प्लस 5 ने, या इनर फंक्शन यानी साइन के अंदर 3x प्लस 5 है, इसके डिफरेंशिएशन से फिर आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही चेन रूल है। गॉट इट? तो अब ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3x प्लस 5 डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5। एक डिफरेंशिएशन हम यहां देखना भूल गए थे, इट वॉज डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट, it is 0. Okay, so here we get the answer cos of 3x plus 5 into 3 कांस्टेंट है, d by dx से बाहर निकल जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x is 1 using the formula differentiation of x raised to the power n is nx raised to the power n minus 1, hence differentiation of x raised to the power 1 because n has been replaced by 1, तो यहाँ आंसर में भी जहां जहां n है वहां वहां हम 1 डाल देंगे। your answer would be 1. Okay, and constant of differentiation of constant is 0, so your answer would be 3 times cos of 3x plus 5. Clear? ठीक है, this is how chain rule goes. Next question. Differentiation of tan square x. We can solve this question by using chain rule as well as by using product rule. I'll be solving this using both the procedures. So tan square x can be written as tan x whole square. Again, I can see a composite function here. Outer function is square function and inner function is trigonometric function. This is a composite function. Function के अंदर function है, square function के अंदर trigonometric function है. तो tan x का होल स्क्वायर, tan x को तो भूल जाइए आप, इमेजिन करिए यहाँ पर x ही है, तो ये आप x स्क्वायर की तरह ही चला रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n क्या होता है? nx रेज टू द पावर n माइनस 1। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होल स्क्वायर वुड बी 2 इंटू tan x रेज टू द पावर 2 माइनस 1, सो दैट इज 2 tan x, राइट? अब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसे? जिस फंक्शन ने x को रिप्लेस किया है स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, या जो इनर फंक्शन है। x को रिप्लेस करने वाला tan x है, या बाहर का फंक्शन है स्क्वायर फंक्शन, इनर फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप इनर फंक्शन से डिफरेंशिएट करिए, आंसर को मल्टीप्लाई कर दीजिए।
ठीक है, दोनों तरीके हैं। एक्स को जिस फंक्शन ने रिप्लेस किया है आप उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करिए, वो 10x है। या तो ऐसे याद रख लीजिए, या याद रख लीजिए जो इनर फंक्शन है उसके डिफरेंशिएशन से आपको मल्टीप्लाई करना है चेन रूल में। स्क्वायर फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इनर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, उसके डिफरेंशिएशन से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स। गॉट इट? Which way you find is easier for you? Inner outer or replacement of x by some function? Inner outer? Okay. Differentiation of tan of x degree plus 45 डिग्री। कैलकुलस में डिग्री मेजरमेंट पर कभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं है। यू हैव टू कन्वर्ट दिस डिग्री मेजरमेंट इनटू रेडियन वन। सो डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ पाई इंटू एक्स प्लस 45 अपॉन 180 रेडियन। ओके, अब ये पूरा अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या हमने डिफरेंशिएशन ऑफ tan x सीखा है, x की जगह इस पूरे ने ली है तो चेन रूल में इस पूरे के डिफरेंशिएशन से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो tan का नॉर्मल डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पर भी हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई एक्स प्लस 45 बाय 180। ओके, मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 180 इंटू एक्स प्लस 45। पाई बाय 180 जो है यहां पर कांस्टेंट है, इसको तो आप डिफरेंशिएशन से बाहर कर दीजिए। आप डिफरेंशिएशन करेंगे x प्लस 45 का, x का डिफरेंशिएशन 1 और 45 का डिफरेंशिएशन 0। सो योर आंसर वुड बी पाई बाय 180 इंटू सेक्स स्क्वायर पाई बाय 180 इंटू एक्स प्लस 45। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन तो आपको डिग्री में दिया था, आपने रेडियन में किया था। इसे इसे वापस डिग्री में रिस्टोर कर देते हैं। ये पाई बाय 180 हटा दीजिए यहां से, आ गया ये डिग्री मेजर में वापस। डिफरेंशिएशन करने से पहले रेडियन में कन्वर्ट करिए, आंसर रेडियन में निकालिए, फाइनली लिखते हुए रेडियन को वापस डिग्री में डाल दीजिए। लेकिन डिग्री को डिग्री में रखकर आपको डिफरेंशिएट नहीं करोगे। ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। पाई बाय 180 मैंने पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया। दैट्स इट। हम ना यूजुअली लॉग के आगे, साइन ऑफ समथिंग के आगे, कॉस ऑफ समथिंग के आगे कभी कुछ लिखना पसंद नहीं करते हैं। क्या होता है कई बार ये टर्म देखो इस सेक्स स्क्वायर का पार्ट नहीं है, है ना, लेकिन कई बार ये इसका पार्ट बन जाता है, गलती से हम ही ब्रैकेट लगा देते हैं।
इसलिए जो एंगल सेक में, जो टर्म लॉग में है, उसको लॉग के आगे, सेक के आगे, साइन के आगे लिखिए। और उसके अलावा जो भी कांस्टेंट बन रहा है, ये कहाँ तक डॉट लगाते फिरोगे, कई बार मिस भी हो जाता है। तो इसलिए इसको पहले लिख दीजिए, तो वो अपने आप क्लियर हो जाता है कि इस सेक स्क्वायर के एंगल का हिस्सा नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, आउटर फंक्शन इज, इनर फंक्शन इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज, तो कॉस ऑफ इनटू, राइट, सो दिस log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, cos of log x, right? Next question, d by dx of e raised to the power sine root x, outer function, e to the power x तो है ही नहीं। d by dx of e raised to the power x क्या होता है? आउटर फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उस पे पावर लगी है ना, तो आउटर फंक्शन ये e है, e की पावर x, तो आंसर क्या आएगा? हम्म, राइट, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट एक्स, बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, हम्म, आपने किसका डिफरेंशिएशन सीखा है? कॉस साइन एक्स का, जो क्या होता है? कॉस एक्स। यहाँ किसका कर रहे हो आप डिफरेंशिएशन? हाँ, तो एक्स को किसने रिप्लेस किया है? या इनर फंक्शन क्या है? तो उसके डिफरेंशिएशन से चेन रूल में मल्टीप्लाई नहीं करोगे, चेन रूल अप्लाई कीजिए, रूट एक्स के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहला चेन रूल यहाँ लगा और इसके साथ चेन रूल फिर लग गया, मतलब यहाँ चेन रूल में चेन रूल है। समझ में आया? सो दिस इज e रेज टू द पावर साइन रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू 1/2 x रेज टू द पावर 1/2 -1। x रेज टू द पावर -1/2 को मैंने पॉजिटिव पावर बना के डिनोमिनेटर में रूट एक्स बना के डाल दूँ, राइट? डन। हम्म, वेरी गुड।
साइन ऑफ 2x+1 होल स्क्वायर। आउटर फंक्शन इज outer square, inner function is right. नहीं, आउटर फंक्शन इज स्क्वायर फंक्शन, इनर फंक्शन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनर फंक्शन इज अलजेब्रिक फंक्शन। कैसे चलाओगे इसे फॉर्मूला? पहले आउटर एन एक्स एक्स रेज टू द पावर एन की तरह चलाएंगे क्योंकि आप बाहर पावर 2 देख रहे हैं। तो 2 sin 2x+1 रेज टू द पावर 2 - 1 इंटू, राइट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ x की जगह इस पूरे ने ली है sin 2x+1 ने, तो आप उसके डिफ्रेंसिएशन से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये बन गया इंटू sin 2x+, हाँ। गुड। क्योंकि हमने sin x का डिफ्रेंसिएशन सीखा है cos x। यहाँ x की जगह किसने ली है 2x+1 ने, तो उसके डिफ्रेंसिएशन से चेन रूल लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इस पूरे को देखें तो क्या ये sin ट्वाइस ऑफ 2x+1 नहीं है? 2 sin θ cos θ इज इक्वल टू sin 2 θ। 2 बाहर, differentiation of x is 1 and differentiation of 1 is 0. So answer will be 2 sin 4x plus 2. Clear? लॉग के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट सीखिए। लॉग ऑफ b टू द बेस a इज log b बाय log a। log ऑफ a रेज टू द पावर b, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है जो log का टर्म है उसमें ही b होना चाहिए। ये log ऑफ a रेज टू द पावर b नहीं चलेगा। इसका आंसर होता है b log a। इसका कोई आंसर नहीं है, प्लीज डोंट टर्न दिस इनटू दिस। log of ab is written as log a plus log b, and log of a by b is written as log a minus log b. Clear? सबसे पहले एक बात समझिए
कि जब आप लॉग के ऊपर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके लिए बेस हमेशा नेचुरल लॉग होना चाहिए। ये आपने फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स में किया होगा कि जब आप लॉग पर ऑपरेशन करते हैं तो बेस जो है वो नेचुरल लॉग होना चाहिए। यहाँ नेचुरल लॉग लिखा नहीं जाता है, मतलब वी डोंट राइट नेचुरल लॉग, मतलब यहाँ पर हम ऐसे ई डिनोट नहीं करते हैं। लेकिन अगर यहाँ कुछ नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ लॉग ई है, ठीक है। तो उस वो बेस तो ई तब बनाओगे ना जब ये बेस 7 हटेगा। तो बेस 7 हटाने के लिए ये फॉर्मूला यूज कीजिए। लगा दिया। अब सुनिए, एक क्वेश्चन तो मैं आपको प्रॉपर स्टेप से ही सिखा देती हूँ। अब तुम बेस ई बनाने के लिए लॉग ई से इसको डिवाइड करिए, करोगे न्यूमरेटर को। इसका रिवर्स फॉर्मूला लगाना है कि अगर log b को log a से डिवाइड करते हो तो आंसर log b टू द बेस a हो जाता है। तो अगर आपने log ऑफ 2x-3 को log e से डिवाइड किया है तो ये log ऑफ 2x-3 टू द बेस e हो जाएगा। समझ में आया? और ये log 7 रहेगा एज इट इज। log e की वैल्यू 1 होती है। इज दैट ओके? कन्वर्ट कर लिया आपने बेस। ये e हम लिखते भी नहीं है, इनफैक्ट ऐसे ही लिख देते हैं बस। डिड यू गेट दैट? तो जब तुम यहां पर आ गए थे तो तुम यहां से सीधे यहां काम कर सकते थे, ये बीच के स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? ठीक। सो नाउ योर आंसर वुड बी 1/log 7 कांस्टेंट बना के बाहर निकाल दो। आउटर फंक्शन इज log फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2x-3। x की जगह किसने ली है, या इनर फंक्शन क्या है 2x-3, उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आया समझ में? आ गया? और log 7 की बेस यहाँ e है, तो आप e लिख सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं। शैल आई स्क्रॉल? d by dx of tan 5x degree, your first step would be tan you cannot differentiate in degree बाबा, कैसे भूल जाते हैं? you have to convert it into radian। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x is, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर 5x पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय d by dx ऑफ, इसको अगर मैं वापस रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 5x डिग्री लिख सकती हूँ, हो गया। इन डिफरेंशिएशन तो अब इसका कोई यूज नहीं है रेडियन का। और इसके डिफरेंशिएशन करते हुए मैं 5 पाई बाय 180 कॉमन निकाल दूं तो मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ x करना पड़ेगा। सो दिस इज 5 पाई बाय 180 इंटू सेक स्क्वेयर 5x डिग्री। गॉट इट?
ये किसकी तरह चल रहा है पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करिए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे? एक्स की पावर एन में तो बेटे ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर तो ये कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है। यहाँ बेस वेरिएबल होता है, पावर कांस्टेंट है। यहाँ बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, तो ये तो लगेगा नहीं। राइट, ए की पावर एक्स, तो बेस कांस्टेंट, पावर वेरिएबल। क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स? तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? हम्म, राइट। एक्स की रिप्लेसमेंट किसने की है? एक्स क्यूब ने, तो उसके डिफरेंशिएशन से आप मल्टीप्लाई करोगे। चलो ठीक से बोलिए, हाँ इसी की तरह चलेगा। हम्म, कैसे चलाओगे? वन को लॉग ही लेके कुछ नहीं होगा बेटा। क्या मैं इसे लॉग एक्स रेस टू द पावर -1 लिख सकती हूँ? अब मैं इसे एक्स रेस टू द पावर एन के डिफरेंशिएशन की तरह यूज कर सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा? log 3 इंटू -1 इंटू लॉग एक्स रेस टू द पावर -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x. So this is minus log 3 into log x raised to the power -2 into 1 by x. Right?
किसकी तरह चलाएंगे आप इसे, डिफरेंशिएशन ऑफ, करिए। पहले पहले 3 raised to the power x² + 2x का डिफरेंशिएशन तो पूरा लिख लीजिए, इंटू log 3 तो बोलिए, इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ x² + 2x जाएगा। a⁻x का डिफरेंशिएशन a⁻x log a, यहाँ नहीं लिखा था क्या हमने कहीं? ओ, इंटू log 2 लिखना भूल गया हम, यहाँ लिखिए। हम्म क्या हम इसे d/dx ऑफ raised to the power 1/2 लिख सकते हैं? ये किसकी तरह चलेगा, x⁻n की तरह, विच इज nx⁻n−1, जहां इस n की जगह इस पूरे टर्म ने ली हुई है। सो दिस इज 1/2 इंटू a² - x² अपॉन a² + x² raised to the power 1/2 -1। क्लियर? अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? इनर फंक्शन के कंसेप्ट पे काम कर रहे हो तो इनर फंक्शन ये वाला पूरा, और अगर x के रिप्लेसमेंट पे काम कर रहे हो तो x को इसने ही रिप्लेस किया है इस फॉर्मूले में, राइट? तो डिफरेंशिएशन ऑफ a² - x² अपॉन a² + x² के डिफरेंशिएशन से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे। 1/2 -1 इज -1/2, -1/2 पावर अगर मैं इसके ऊपर दूं और उसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करूं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, राइट? और यहां हम क्या लगाएंगे, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या बोलता है, जब आप डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर रहे हो तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, और फाइनली डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, राइट? तो अब आप यहां क्या करोगे, a² + x² एज इट इज लिखोगे इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, राइट, माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज लिखोगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ओके, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यही लगेगा आपका क्वेश्चन रूल। सो दिस इज 1/2 √a² + x² अपॉन a² - x² इंटू a² + x² एज इट इज लिखेंगे, a² का डिफरेंशिएशन 0 और x² का 2x, माइनस a² - x² एज इट इज लिखेंगे, a² का डिफरेंशिएशन 0 और x² का 2x, राइट, डिवाइडेड बाय a² + x² का होल स्क्वायर, ओके। सो नाउ दिस इज 1/2 अंडर रूट a² + x² अपॉन a² - x² इंटू -2x इंटू a² + x² -2x इंटू a² - x² अपॉन a² + x² का होल स्क्वायर, राइट? अब हम क्या करेंगे, 1/2 अंडर रूट a² + x² अपॉन a² - x² इंटू 2x कॉमन निकाल लीजिए दोनों टर्म्स में से माइनस साइन के साथ,
पहले टर्म में बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म में बचेगा प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां से भी -2x बाहर चला गया, तो यहाँ साइन प्लस हो गया। ये दोनों कैंसिल, आपका आंसर यहाँ 2 कैंसिल। सो दिस इज -x इंटू 2a स्क्वायर, -x इंटू 2a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट, इसको भी हम स्प्लिट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। क्लियर? ठीक है। सो दिस इज -2 a स्क्वायर x, ये 1/2 पावर इधर 2 में आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड 2 माइनस 1/2 विल मेक इट 3/2। गॉट इट? और ये वाला टर्म एज इट इज लिखो। ये अभी तो हम एक एक स्टेप लिख के कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा लेंदी जा रहा है, टाइम लग रहा है। बाद में हम डायरेक्ट आंसर्स लिखने शुरू कर देते हैं, मतलब ये सब d/dx एंड ये सब लिखते नहीं है, सीधे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू -2x।
यहाँ हमने लॉग ही नहीं लगाया था फॉर्मूले में भी, इसलिए हमारा आंसर वहां भी हम लॉग लगाना भूल गए। चलो कोई बात नहीं। चल, किसकी तरह जाएगा? हम्म। एक एक्स से एक लॉग एक्स से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कैसे लगता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसे फर्स्ट ले लो इसे ले लो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। पहला फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सो दैट वुड बी। गॉट इट? डोंट फॉरगेट टू पुट डॉट, दैट इज द इंडिकेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन हेयर, नहीं तो लॉग इस पूरे टर्म का हो जाएगा। ठीक है। क्या मैं इसको फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके पहले रूट हटा सकती हूँ? जैसे इससे पहले हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, इसमें तो रूट हटाना संभव ही नहीं था, आप किसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर बना ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ चांसेस है, देखिए कैसे। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। गए आपका स्क्वायर रूट खत्म। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, चलो। अगर मैं इस पूरे को cos x बाई टू से डिवाइड कर दूं तो ये 1 हो जाएगा, ये tan x बाई टू हो जाएगा।
ये 1 ये -10x/2 हो जाएगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो ये 10π/4 प्लस 10x/2 अपॉन 1 माइनस, मैं यहाँ एक 1 कंसिडर कर सकती हूँ, उससे कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि 1 का प्रोडक्ट कोई बदलाव नहीं डालता। तो क्या ये 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b में कन्वर्ट नहीं हो गया, विच इज 10 ऑफ a प्लस b? टेन का डिफ्रेंसिएशन इंटू dy dx ऑफ, so now your answer would be sec square π/4 plus x/2 into 0 plus 1/2 into 1, राइट। देखिए, थोड़ा अगर आप फंक्शन सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आप अपने डिफ्रेंसिएशन को घटा लेंगे, और नहीं तो लंबा सा डिफ्रेंसिएशन जाता। अगर हम यही काम करते तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन रूल लगता। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन में भी काम आता है जो एडजस्टमेंट हमने की है। चलो बेटा।
माइनस साइन के साथ ही ले लो। वन प्लस वन टू इंटू एक्स इज माइनस टू एक्स, नॉट एक्स, माइनस एक्स बेसिकली। आगे। हम आंसर को सही याद नहीं, क्योंकि वन प्लस एक्स स्क्वायर आगे सॉल्व हो सकता है, टू माइनस वन बाई टू। डन। हम्म नॉट ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स में बेस कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। प्रोडक्ट रूल क्यों? आप इसे एक्स रेज टू द पावर एन की तरह नहीं चला सकते? टू लॉग साइन एक्स रेज टू द पावर टू माइनस वन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। चलो आगे। वन बाय एक्स क्यों? राइट, दैट वुड बी डन।
चलिए आगे। ना सही चल रही हो? राइट। हम्म। क्या लगाएंगे? लगाइए। ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। क्या हो गया? डन। हम्म। वेरी गुड। क्या लगाओगे यहाँ? लगाओ। इसका डिफरेंशिएशन हम सीधा लिख सकते हैं या 2x? हमारा काम और कम हो जाएगा। हम्म।
ये माइनस इस माइनस में मल्टीप्लाई होके यहाँ प्लस हो जाएगा। What do you observe in this question? Yeah, we have to apply product rule. First function into differentiation of second, हम ऐसा सीधा कर सकते हैं। cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, लेकिन x की जगह 2x ने ली है तो 2x के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो e की पावर 3x का e की पावर 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3। डन हो गया आंसर, 2e रेज टू द पावर 3x। और अब इस पूरे में से e की पावर 3x कॉमन निकाल दीजिए। 3 cos 2x में पहले लिख रही हूँ, माइनस 2 sin 2x हम बाद में लिख रहे हैं। गॉट इट? लिखो। वेरी गुड। cos ऑफ log sin x, d by dx of sin x, that would be cos x। अब बार बार हम वो d by dx of sin x and so on नहीं लिखेंगे, क्योंकि चेन रूल 11th क्लास का पार्ट था। 12th क्लास में आपसे सीधा आंसर एक्सपेक्टेड होता है, वो d by dx नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो छोड़ना शुरू करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेंटली करना शुरू करेंगे। हम्म। राइट। into differentiation of 3x,
into 3. Okay. अब कुछ याद आया? ये x की पावर n की तरह चला है बेटा, x की जगह किसने ली है? तो नो, वी आर गोइंग टू रिड्यूस दिस फर्स्ट. इसे हम 2 sin x/2 cos x/2 लिख सकते हैं. और 1 + cos x जो है, इसको हम सॉल्व करेंगे एज 2 cos² x/2. कैसे, ध्यान दीजिए. cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos² θ-1. तो अगर 1 यहां जाता है एडिशन में, तो आंसर आ जाएगा 2 cos²θ. तो अगर यहाँ डबल एंगल होता है तो उसका हाफ यहाँ होता है. यहाँ डबल एंगल किसका था, ये x/2 का. तो यहाँ x/2 बन जाएगा. प्रोडक्ट रूल लगा, ओ सॉरी, क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ता, वो हमने स्किप कर दिया. हम्म. ठीक है.
Done? Okay. Time to give you some homework now.